कि तुम पढ़ रहे हो बहुत 4-5 घंटे 4 Hi everyone, welcome back to my channel. So today I will be explaining you and telling you that ऐसा क्यों होता है that you are doing the same books, you are studying the same material, तुम्हें सेम टीचर पढ़ा रहा है, बट क्यों कुछ स्टूडेंट्स 680 650 मार्क्स लेकर आ रहे हैं एंड आप अराउंड 550 500 और मे बी लेस देन दैट मार्क्स ला रहे हो. सो isn't it like कि वो बॉर्न ही बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं, या इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ते तो आप भी हो. So why that thing happens which lead them over you, like they become kind of above average than you, but it's not true. You can do the same. I am the live example. I increase my marks. So I was the same like you. I was scoring 400 450 500, maybe 380 sometimes, which was very demotivating, right? So it's like there always an answer to your question, there is always a solution of every single problem. So I find out, I keep on searching on the YouTubes, or why is that so key, why some of my friends are getting very good marks above 650 and I am very far away from them, from their marks. So why is that so? So I searched it and I find out that you can do the same. You can change your mind, and you can change your subconscious mind. It's all about the subconscious mind. So if you change your subconscious mind, you will it will lead to increase your marks. That's what I did. So I did increase my marks from about 500, then 580, then 650, then 680, and I reached in my mock test of 710 or 700. So how did I did it? So I did it by using and altering my subconscious mind, because subconscious mind is a very complex thing, which I will be explaining you how you can change that too in a very short span of time. सो वाई इज़ दैट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना गया गुजरा है और किसी और का सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी नाइस, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर मार्क्स. यू कैन जज समवन सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स दे आर गेटिंग, राइट? लाइक अगर कोई बच्चा 670 680 कॉन्स्टेंटली स्कोर कर रहा है एंड तुम कॉन्स्टेंटली स्कोर नहीं कर रहे हो, तुम 500 430 400 पे हो, देन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर्स एंड हिज सबकॉन्शियस माइंड. So हमारा इतना गया गुजरा क्यों है, and how we can improve that, we will discuss in the upcoming part of the video. So आप पूछ रहे होगे ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत हो रहा है, बट व्हाट इज़ सबकॉन्शियस माइंड? So subconscious mind is basically in our brain we have three parts, like there is a conscious mind, there is an subconscious mind, there is an unconscious mind. So unconscious mind are doing all the respiratory movements, all the heart activities which are happening on its own. You have no control over them, so that comes under unconscious mind. What is in the conscious mind is that you can think, you are thinking, you are talking, you can choose what words you can use, you can choose what you're gonna comment in the comment section of this video. You can choose, right? You can walk because you want to walk. So that comes in your conscious mind. Now what is subconscious mind is something जो भी तुम्हारी आदतें, जो भी तुम्हारी हैबिट्स, जो भी तुम्हारे आइडियाज़, जो भी तुम्हारे बिलीव्स खुद को लेकर हैं, तो जितने भी बिलीव्स खुद को लेकर आपके अंदर हैं, जितने भी आइडियाज़ आपको किसी ने दिए दैट you cannot achieve great marks in your test, you cannot score full in your test, you cannot you are not able to do that, and same you can apply it in your day-to-day life. Why are you brushing your teeth by using your right hand? तुम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, बट यू आर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि तुम कुछ चीज़ें इस तरीके से सोचो कि ये ऐसा होता है और ऐसा ही हो रहा है, राइट? और ये सारी चीज़ें विल मेक योर सबकॉन्शियस माइंड, विल मेक योर बेस, योर फीलिंग्स, जो भी तुम फील कर रहे हो एवरी डे, योर आइडियाज़, जो भी तुम सोच रहे हो, एंड जो भी तुम्हारे बिलीव्स हैं,
इस वर्ल्ड को लेके, they all are comes under your subconscious mind. Because of that, whatever your idea you are choosing कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, that's also a part of your subconscious mind. For example, आपने सोचा आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, बट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की आदत, हैबिट्स मेक द सबकॉन्शियस माइंड, वो है कि भाई 3 ही घंटा पढ़ सकता है यार, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता. सो देन कम्स द बॉडी, क्योंकि एक्शन उसे करना है, पढ़ना उसे है. सो व्हाट हैपन इज़ कि यू डिसाइड कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, बट ब्रेन भी लाइक 3 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई. बट यू पुश योर सेल्फ कि भाई 3 के बाद आप पढ़े कि नहीं मैं तो 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगा, बट चौथे घंटे तक आते आते यू जस्ट क्रैक डाउन, यू लाइक सो जाओ भाई, छोड़ो. सो दैट ऑल्सो कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि भाई आपने डिसाइड किया, दैट्स योर कॉन्शियस एफर्ट. आप बट पढ़े आप सिर्फ 4 घंटे ही, है ना, बट जब आप चाहते थे बट स्टिल आप सिर्फ 4 घंटे ही पढ़े. सो दैट ऑल्सो कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि अगर तुमने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं सिखाया, अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया या तुमने उसे चेंज नहीं करा, तो नथिंग विल चेंज. तुम चाहते हो कि तुम 100-200 MCQs लगाओ पर डे, तुम बैठते भी हो करने, बट देन तुम कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि तुम्हें मन नहीं करता. दैट फीलिंग ऑल्सो इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. सो हाउ वी आर गना चेंज इट, बिकॉज चेंज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी हम नहीं पहुंच पाएंगे जिस मेडिकल कॉलेज में हमें जाना है, जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हमें सीट चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन है. सो यू हैव टू चेंज. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. मेरे पास तो नहीं था, तुम्हारे पास भी नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बना क्यों है सबकॉन्शियस माइंड, कैसे, किसने इसे प्रोग्राम करा है. सो फ्रॉम योर बर्थ टिल द 7 years ऑफ योर लाइफ तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस नहीं है. तुम्हें नहीं पता कि गर्म छूने से तुम्हारी हाथ जल सकता है, तुम्हें नहीं पता करंट को छूने से तुम्हें शॉक लग सकता है, तुम्हें कुछ नहीं पता. यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, यू आर ओनली सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग. वट एवर इज़ कमिंग इन, यू आर डायरेक्टली गेटिंग इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड. तो अगर तुम्हें बचपन में किसी ने सिखा दिया कि राइट हैंड से ब्रश करना है, तो थ्रू आउट द लाइफ तुम उसी को यूज़ करोगे. तुम नहीं सोचोगे कि भाई लेफ्ट हैंड भी यूज़ हो सकता है. सेम थिंग अप्लाइज कि अगर 7 years में स्कूल भी जाने लग जाते हो, तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, इफ़ यू आर स्कोल्डेड बाय योर टीचर्स, इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूविंग, इफ़ यू आर नॉट सो गुड इन स्टडीज़, तो तुम्हारी पूरी लाइफ यही सोचने में निकल जाएगी कि हाँ शायद मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ. राइट. सो ये सारी चीज़ें तुम्हारे बचपन की वजह से, तुम्हारे बचपन में जो भी तुमने देखा, फेस किया, जो भी फॉर्म्स, जो भी चीज़ें कि तुम कुछ चाहते थे तुम्हें मिला, तो इट्स अ गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ जो तुम्हारा आगे तक जाएगा. बट तुम चाहते थे और तुम्हें नहीं मिला, एंड एवरीवन से कि तू डिज़र्व नहीं करता या यू आर नॉट केपेबल फॉर डूइंग इट, ये सारी चीज़ें, देन दिस विल गो टुवर्ड्स योर लाइफ. यू कैन ऑल्सो थिंक दैट बचपन की मेमोरीज डेफिनेटली आपके पास होंगी जिसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या किसी दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया कि तू नहीं कर सकता वाला पार्ट, जो आज तक आप लोगों के साथ है. थिंक अबाउट दैट, वो होंगी. राइट. सो जो भी आइडियाज़, जो भी थॉट्स, जो भी इमेजेस तुम्हारे दिमाग में उन 7 years में गई, और जो तुमने फील करा थ्रू दैट, या तुमने लोगों को फील करते हुए देखा उस चीज़ को, वो तुम्हारे अंदर चली गई. नाउ विद द होल ऑफ योर लाइफ यू आर गोना फील दैट, यू आर गोना सी दैट, यू आर गोना डू दैट. राइट. सो ये सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड की डेवलपिंग के टाइम पे हुई है. सो आपकी गलती अभी तो नहीं है, बचपन की है, जो भी इन्वायरमेंट की वजह से हुआ. बट अब इसमें पेरेंट्स को वो मत करने लग जाना कि भाई आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है. नो, उन्होंने जो दिया आपको 100% दिया है, दे गिव यू देयर 100%. नाउ it's your responsibility to change your subconscious mind, and you're gonna inherit the same information in your future generation. This is your responsibility. So ये सारी बातें बात की हैं, अभी बच्चे पैदा करने नहीं बैठ रहा कोई. सो हमें मेन मतलब है कि हमें मार्क्स बढ़ाने हैं, हमें भाई अच्छी रैंक लेकर आनी है, और हमें एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है. हम इस पे अभी वर्क कर रहे हैं. राइट. सो व्हाट यू शुड बी डूइंग टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड. सो होता क्या है कि एज आई टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियोज़ कि डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग. अगर तुम्हें कोई चीज़ चेंज करनी है, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट, कि भाई मुझे करना ही है चाहे जो हो. ठीक है.
दूसरा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जितने घंटे तुम पढ़ोगे, तुम्हारी इफ़ेक्टिवनेस कि तुम पढ़ रहे हो बहुत 4-5 घंटे 4-5 दिन लगा दिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, स्टिल तुम्हारे मार्क्स उसमें 100 से ऊपर जा ही नहीं रहे आउट ऑफ 180 MCQs में। सो ये सारी चीज़ें तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। तुम्हारा तुम कितने घंटे पढ़ोगे, तुम कैसे पढ़ोगे, तुम कितना अचीव करोगे, तुम क्या करोगे लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट दैट। So how are you gonna change it? So there is a thing called paradigm. Now paradigm is what is what? It is called multitude of habits. जितनी भी आपकी आदतें हैं, जो भी आप सुबह से शाम कर रहे हो और उन्हें करके जो भी आप फील कर रहे हो, वो सब पैराडाइम के अंदर आता है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। सो हमें उस चीज़ को चेंज करना है, हमें उन आदतों को चेंज करना है सो दैट हमारा रिजल्ट भी चेंज हो। ठीक है, देयर कम्स कि आपको एफर्मेशंस का यूज़ करना है, देयर कम्स कि आपको सबलिमिनल्स का यूज़ करना है, दैट कम्स आपको अपने हैबिट्स, अपनी स्टडी शेड्यूल में चेंज लाना है, एंड यू हैव टू डू इट नॉट फॉर 1 day 2 day, you have to do it for 90 to 100 days in order to completely change your subconscious mind for that purpose.